Hello everyone, welcome to my YouTube channel Enhance Education. This is chapter 1 Electric Charges and Fields and example number 1.6. Question says question says consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q, that is यहाँ पर तीन charges हैं जिनका magnitude equal है at the vertices of an equilateral triangle of side L. Now it asks in question what is the force on a charge capital Q है ना, with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure. तो क्वेश्चन में पूछा जो है वो अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिगर से आपको बता देता हूँ. यहाँ पर there is a triangle and on that triangle at the vertices of this triangle, that is vertices are A, B and C, we have three charges Q1, Q2, Q3 and all are of the same magnitude. Okay, that is Q1 is Q, Q2 and Q3 all are equal and it is an equilateral triangle of equal side, that is L is the side. Now there is a centroid of this triangle and on that there is a point capital Q. Okay, so how we can get the centroid? If we draw the three medians of this triangle like this, one of this is AD, okay, and then the second one and the third one, and the common point, that is the point of intersection of these median, and that point is called centroid. Okay, so suppose this point is O and this on this centroid we have a charge capital Q. So now we have to calculate the force on this charge due to the charges placed at the vertices. This is the question. So now we are going to calculate the total charge by Q1, Q2 and Q3. Okay, so before uh, starting this solution of this question, if you are new to my channel, so please subscribe this channel and to get these latest videos, don't forget to hit the bell icon and definitely you will like this video, so please like it and don't forget to share it. So let's proceed the solution of this question. Here I think कि जितना भी बताया अभी यहाँ पूरा आपको क्लियर हो गई होगी पिक्चर. सो हमें करना क्या है, क्यू पर यानी कैपिटल क्यू पर हमें फोर्सेज निकालनी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे द चार्ज प्लेस्ड एट ए, एट पॉइंट ए. तो हमें निकालेंगे फोर्स. First of we calculating the force on capital Q due to Q1 है ना, which is कितना है वो इक्वल टू Q के बराबर ही है, सिंपली Q. और कहाँ की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ए की बात करते हैं. एक हम निकाल लेंगे तो उससे बहुत आसान हो जाएगा कि बाकी भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि सेम चार्जेस है. अब इसको आप देखें दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है विद द सेम साइन एज क्यू. यानी अगर क्यू आपका नेगेटिव है तो कैपिटल क्यू भी नेगेटिव है, अगर क्यू पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव होगा. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट Q1 and the force by Q1 on capital Q, then that force will be repulsive always because they are like charges. So the direction of that force would be like this, okay, to the in the downward direction. And suppose this force is F1. So first of all we are going to calculate this force F1. So by Coulomb's law we know that it is equal to K, then charges, that is capital Q, small q, and divided by this distance AO. This is AO. अब सभी चार्जेस में हम जब बात करेंगे तो हमें AO चाहिए, BO चाहिए और CO चाहिए, यानी इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पर चाहिए. तो हम यहाँ थोड़ी सी इसके लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट कर लेते हैं पहले. ओके, सो देखिए हियर लेट्स स्टार्ट डू सम ज्योमेट्री. सो इसके अंदर आप देखें इन द ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी एंड सी. आप इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिस वुड बी योर दिस एंगल कितना होगा यहाँ से, हाफ ऑफ दिस, दैट इज 30 डिग्री. तो ये एंगल 30 डिग्री होने वाला है. सो इन दिस ट्रायंगल अगर हम लें साइड AD का रेशियो ऑफ AD टू AC, ओके, सो दैट वुड बी इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर होगा DC, AD विल बी द बेस,
So base upon hypotenuse, that is cos, and the angle is 30 degree. Okay, so we know this AC is nothing but L. Okay, so यहाँ से हम AD लिख सकते हैं, AD is equal to cos 30 degree, you know the value is under root 3 by 2 and then multiply with AC means L. तो हमारे पास यहाँ पर एक AD की वैल्यू आ गई, यानी मीडियन की वैल्यू हमने निकाली। अभी थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट और देखेंगे हम। एक चीज़ हम ये भी जानते हैं, देखिए ये अगर ज्योमेट्री में छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है कि जो सेंट्रॉयड होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है किसी भी वर्टिसेस से, दैट इज इक्वल टू, यानी हम इसकी जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लाइक ए ओ की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली दूसरा वर्टिसेस होगा उससे बी ओ की डिस्टेंस होगी, तीसरा जो होगा उससे सी होगा, ये बराबर होंगी पहली बात। तो हम ए ओ की हेल्प से निकालना चाहें तो ये जो होता है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मीडियन, दैट इज 80। ठीक है, ये हमें मालूम होता है। ओके, सो ए ओ, अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू है ए ओ बी ओ सी ओ सब बराबर है, तो क्यों ना हम इसको एक वैल्यू ले लें आर। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। सो आर इज बिकम 2/3, और ए डी जो हमने यहाँ से निकाला इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट 3/2 इंटू एल। ओके, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा इसको रैशनलाइज करें, अंडर रूट आ रहा है क्योंकि, तो अंडर रूट 3 ऊपर और अंडर रूट 3 से नीचे, तो अंडर रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, और 3 नीचे है तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बाकी बचेगा यानी आर जो है, आर यानी ए ओ बी ओ सी ओ, दैट इज इक्वल टू एल बाई अंडर रूट 3। तो ये हमारा जो ज्योमेट्री से निकला है पोर्शन, ये हमें हेल्प करेगा टू डू सम फिजिक्स, है ना। यानी जो हमारा फिजिक्स का पार्ट यहाँ पर है, जो हम कूलम्स लॉ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं वापस फिजिक्स पर। तो यहाँ पर के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, सो आर इज, दिस इज योर आर, एक मिनट, ये हाँ ये हो गया आपका आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, नाउ आर इज दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। ठीक है, ये F1 है। इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, डायरेक्शन क्या होगा, तो ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो दैट इज अलोंग ए ओ, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट समझाना था। अब बाकी के दो इजी होंगे तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सिमिलरली। सिमिलरली अब दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर F2। अब F2 जो फोर्स आएगी उसको जब अप्लाई करेंगे तो F2 आपने देखा यहाँ पर, ये दिस इज योर F2, और उसकी डायरेक्शन भी आपको दिख रही होगी, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, दैट इज के कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई दिस इज 3 एंड दिस इज एल स्क्वायर, सेम ही आएगा वो भी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, और इस डायरेक्शन को हम लिखेंगे अलोंग बी ओ। ओके, now you can see in this triangle the force by third charge, that is Q3, उसकी डायरेक्शन ये होगी, that is the force F3। तो F3 भी सेम ही होने वाला है, that is F3 is nothing but 3K कैपिटल Q स्मॉल q and divided by L स्क्वायर, एंड इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, और इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हो दैट इज CO। ओके, अब ये तीन फोर्सेज हैं जो इसी एक पॉइंट Q पर एक्ट कर रही हैं, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, दैट वुड बी द आंसर। ओके, तो वही हमारा आंसर होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, हम तीन फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूल है जिसमें हम दो वेक्टर्स को एट अ टाइम ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज इधर बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं रिजल्टेंट, हम लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ, हम दो कोई भी फोर्सेस ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ले रहा हूँ रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, इसका रिजल्टेंट ले लेते हैं। अब इसके बीच में हम अगर इस फोर्स के बीच में अगर हमें एंगल मालूम होना चाहिए, और इसको एंगल को अगर आप देखें तो ये एंगल कितना आ रहा है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब कैसे, देखिए 30 हो गया अगर इस एंगल की बात करें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 90, तो ये हो जाएगा 60 60 60 120, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा जो है वो 120 डिग्री होगा। ओके, अब रिजल्टेंट, अगर आपने वेक्टर, इसके लिए वेक्टर आना चाहिए तो इसका रिजल्टेंट को हम लिखेंगे किस तरह से, अगर हमारे पास ए बी दो वेक्टर हैं उसके बीच में एंगल दिया हो तो उसका रिजल्टेंट लिखने के लिए हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर
plus 2 F2 F3 and cos of the angle between them, that is 120 degree. अच्छा, cos 120 डिग्री कितनी होती, वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होती है आपकी -1/2। तो इसको हम देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें F1 F2 F3 इन सब की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है, यानी हम F1 हो या F2 हो या F3 हो, इन तीनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको क्यों ना हम F ले लें, F से डिनोट कर दें। ठीक है, तीनों बराबर फोर्सेज लग रही हैं, डायरेक्शन अलग है, उसकी वजह से हमें इसको वेक्टर एडिशन करना पड़ रहा है, तो वो हम यहाँ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, F2 और F3 को किया, तो हमारा रिजल्ट आएगा। देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो अब F2 F3 की जगह क्या लेंगे, हम F ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर एंड कॉस ये कितना होता है -1/2। ओके, एंड दिस इज द स्क्वायर रूट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -F स्क्वायर, तो प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर, तो ये सिंपली आ जाएगा आपका F। तो ये रिजल्टेंट किसका है, ये रिजल्टेंट आया आपका F1 और F2 का बाई पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ देखिए हमने इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो ये रिजल्टेंट आने वाला जो हमने आपको निकाला, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, F आ रही है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ गौर से देखें कि जो F1 है ना, वो भी F के बराबर है, तो दिस इज ऑल्सो F, दिस इज ऑल्सो F। अब ये दोनों बराबर हैं इन मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी ये जो वैल्यू है आपकी, ये और ये जो आपका आ रहा है ना, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि ये इक्वल अपोजिट है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, लेट्स। तो यहाँ फिगर आप यहाँ भी देख सकते हो, तो यहाँ पर जो हमारा निकल कर आया, दिस इज योर F। ओके, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर दिस एंड दिस इज इक्वल, सो रिजल्टेंट हम यहाँ लिख सकते हैं फाइनली, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 है ना, दैट इज क्या निकला, F। रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 एंड F1 which is also F ना, is 0। अब ये रिजल्टेंट की बात करें तो उसको रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 एंड F1 विच इज F, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल एंड अपोजिट। तो F1 F2 और F3 का रिजल्टेंट और F1 वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, सो फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ना इज इक्वल टू 0 होगी। Okay, so this is your answer and I hope you understood the entire explanation.